So we have some doubts on exercise koto 16. Like question number exercise 16. Trigonometry exercise 16. Question number 6. प्रथम 6. Question number 6 है कि बोल लो sin 2a sin 2b 2c. Sin 2a sin 2b plus sin 2c divided by sin a sin b sin c. Sin a plus sin b plus sin c. And we have to prove it. 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ঠিক আছে আমরা যদি করি চলো যদি LHS দিয়ে স্টার্ট ফ্রম LHS উপরে আমি দেখতেছি যেহেতু sin 2a 2b এটিতে আমি কিছু একটা লাগাই ঠিক নেই let us do this one তবে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে লাগবে আমার sin 2a এটা আরো অর্ধেক a by 2 so that we have to consider चलो देखते पहले ये दोनों में अप्लाई कर लेते sin 2a plus sin 2b ऊपर কি হয়ে যাবে এটার মধ্যে কি given আছে a plus b plus c is equal to pi that is always given to me in this chapter ठीक है sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 which will give you a plus b cos c minus d by 2 which will give you a minus b. Sin c plus sin d 2 sin ठीक है sin a plus b को हम क्या लिख सकते हैं pi minus c which becomes 2 sin c and then cos a minus b and this become 2 sin c cos c नीचे এটা আমরা কি एक बार इधर 2 sin a plus b by 2 का हम क्या लिख सकते हैं pi by 2 minus c by 2 ठीक ना कॉम्प्लीमेंट्री तो it will be 2 cos c by 2. What I am doing is instead of this one last day আমরা দেখছিলাম it is nothing but pi by 2 minus c by 2 और यहाँ हमने किया pi minus c that thing we are doing. This will give you cos a minus b by 2 and sin c को हम लिखेंगे 2 sin c by 2 cos c by 2. तो लेफ्ट साइड से 2 कॉमन जाके 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा sin c कॉमन जाएगा अंदर रहेगा cos a minus b प्लस cos नीचे 2 cos c by 2 so it will be cos c by 2 then ভিতরে হবে cos a minus b by 2 plus cos c by 2. ठीक है और cos कॉमन गया है so it will be sin c by 2. ठीक है तो sin c को हम क्या लिखेंगे 2 sin c by 2 cos c by 2 2 sin c by 2 cos c by 2 divided by cos c by 2 और এদিকে লিখবো আমরা cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos a minus b minus c by 2 और नीचे sin c আমি কি লিখব cos a minus b by 2 plus cos a plus b by 2. So this cos c by 2 will get cancelled. ठीक है
So ultimately it will come at 2 2s are 4 sin c by 2 ভিতরে আমরা এটা কি লিখুম a plus c by 2 को हम क्या लिखते हैं pi by 2 minus b by 2 तो pi by 2 minus b हो जाएगा cos pi by 2 minus b it will become sin b আর বাকিটাতে কি লিখুন b plus c by 2 is equal to pi by 2 minus a by 2 so a by 2 is like pi by 2 minus it will be sin a divided by नीचे we can do cos a minus b cos a plus b also ठीक है ना cos a minus b cos a plus b की 2 cos a cos b ठीक है so 2 cos a मतलब दोनों प्लस होगा प्लस होने से a आएगा और cos a minus b माइनस होले a minus 2 will get cancelled that will be by 2 b a cancel b क्या चाहिए अपने को a by 2 b by 2 c by 2 ठीक है a by 2 b by 2 c by 2 ओके c by 2 तो आ गया हमको चाहिए a by 2 b by 2 -4 ये हो जाएगा 2 sin c by 2 अरे sin b की लिखता रहा हूँ 2 sin b by 2 नीचे ठीक है तो सब ना cos c by 2 2 sin c plus b by 2 c plus b by 2 रे আমরা কি লিখতেছি c plus b by 2 complementary is a plus b by 2 that is cos दोनों जो प्लस cos यही तो आया ना है नहीं by 2 आया a by 2 आया ना है बोल रहे और this is actually 4 तो better so it is 8 तो ऊपर आते से 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है এটা cos a by 2 b by 2 এর পরে দেখো তো কত ভুল করেছে নাকি ডিভাইডেড বাই 2 তো মেজ 2 cos c plus d by 2 ঠিক আছে যেটাই লাগে দুটোটা লাগালে হইব প্লাস করলে কি দেব bb will get cancelled then it will be a by 2 plus a by 2 a divided by our 2 so niche we are missing these two so these will cancel out so finally you are left with this one this so this is your answer then proof so therefore इजी तो আসলো চাপ তো আসবে না ওইটাই তো এই তো ফর্মুলা লাগে শুধু সুযোগ জেনে সুযোগ থাকবে উইল ইউজ দিস ফর্মুলা a plus c equal to 5 2 cos a cos b এখানে এটাই তো a by 2 बीटा b by 2 है ना a by 2 plus b by 2 a by 2 माइनस उस हिसाब से আমরা করব 6 এর পরে কত কিছু নেক্সট এরপরে আরে আসলো কয়টা হোমওয়ার্ক আসলো কয়টা আরে কি কর 6 এর পরে 8 কেন এত চাপ কেন cos a by আচ্ছা এটা একটা আলাদা ফরম্যাট হতে হবে এই ফরম্যাট আমরা করছি না ইট ক্যান বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল cos a plus sin b by sin c by cos b by sin c sin a plus cos c by
साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है ना. So we'll start with LHS. As such क्या करेंगे कुछ तो आइडिया नहीं हो रहा है, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक एलसीएम. एलसीएम इसका सुंदर आएगा, ठीक है ना. एलसीएम लेने से कुछ कर सकते हैं. इट विल बी साइन ए साइन बी साइन सी. Then we can do something. It will be sin A cos A plus sin B cos B plus sin C cos C is equal to into. आइडिया देखो, व्हाट वी नीड टू डू, इसको कंपाइल करना है. मतलब एक साथ कॉम्पैक्ट करके अगर 2 sin A sin B आ जाएगा, then it can cancel out. नीचे ऊपर cancel out हो जाएगा. So we'll multiply denominator and denominator by 2 so that we can apply 2 sin theta sin 2 theta. It will give you sin 2A. It will give you sin 2B. It will give you sin 2C. इससे क्या बनेगा, उससे sin C प्लस sin D लगा सकते हैं. C प्लस D होने से क्या, प्लस C. इट विल गो टू प्रोडक्ट फॉर्मेट. प्रोडक्ट फॉर्मेट में चाहिए हमको. sin C प्लस sin D हो जाएगा कितना, 2 sin C प्लस D by 2 cos C माइनस D by 2. इसको 2 sin C cos C, 2 sin A sin B sin C. 2 will get cancelled. These and these will get cancelled. So what we will left with, sin A plus B we can write sin C. So sin C is taken common. So then it is cos A minus B plus 2 hint हो गया है. 2 has gone from this also. प्रोडक्ट कॉमन ले गया. So it will be sin C जाने से cos C. And then divided by sin A sin B sin C. फिर इसमें से कौन सा कट आउट हो गया, sin C. So the thing I left with is, इसको हम cos C minus cos D भी, या फिर लास्ट में हम लोग देखा था, there is another one, cos C को we can write cos A plus B also. तब उससे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि cos A minus B plus cos A plus B का फॉर्मूला बन जाता है. And it is sin A sin B. I think again हमने कुछ यहाँ, it will be minus. लास्ट डे में भी गलती किया, यहाँ पर भी गलती किया. क्या गलती है, लास्ट डे में डिड ए मिस्टेक. यहाँ पर जैसे c को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी, एंड cos पाई माइनस ए प्लस बी इज माइनस cos ए प्लस बी. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मान नेगेटिव तो बच्चा भी नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इट विल बी लाइक दिस. तो cos ए माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा, 2 sin A sin B भी बनेगा, और नीचे में भी sin A sin B. So everything will get cancelled and you will get 2 as a quote. Next day, Konda next. Then
तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दो लग जाएगा खत्म। फॉर्मूला लगाने लगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, ऐसे होगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b and then sin c। तो पहला दो में विल पुट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, if you do the left hand side, sin square minus a square minus b square, then a plus b into a minus b। sin c plus sin d क्या हो जाएगा? 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, और इसमें से 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 plus sin square। इस चीज को ध्यान दो, इसको देखो, 2 sin a plus b by 2 साथ cos a plus b by 2 क्या बन जाएगा? 2 sin a sin b, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा। 2 थीटा मतलब a plus b by 2 मीन्स a plus b। यहाँ पर सेम 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा मतलब क्या बन जाएगा? a minus b। sin a plus b को हम क्या लिख सकते हैं? sin c, बिकॉज इट इज पाई माइनस c। You take sin c common, then it will be sin a minus b plus sin c, which will give you sin c is equal to sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, या फिर इसको हम पाई प्लस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, लिखे साइन साइन ए माइनस बी प्लस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? दैट विल बी इजी आई थिंक। उससे लास्ट प्रॉब्लम में जैसे कि सी को वी कैन रिप्लेस इट, सी को हम लिख देंगे साइन ए प्लस बी, ठीक है? तो साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी, 2 sin a cos b and then sin c। ঠিক আছে, ডান? আর তো নাই, শেষ তো। Then what we are solving, next topic is trigonometric equation। Again বোর্ডে এত একটা কোয়েশ্চেন নাই, বাট আজকাল আবার স্কুলের কোয়েশ্চেন একটু জেইর কোয়েশ্চেন দিয়ে একটু ডট দেখায়, বাট বেসিক্যালি অরিজিনালি এনসিইআরটি তো আসলো না, বাট জেইর লাগে বা স্কুলে এখন ঢুকাই দিয়ে। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोल के क्या बोलना चाह रहे हैं? যেমন সে মনে করো একটা एग्जांपल, व्हाट इज दिस, एक्चुअली sin थीटा इज इक्वल टू हाफ যদি থাকতো এতদিন আমরা ছোট ক্লাসে কি লিখে দিতাম? আপ টু ক্লাস 10 থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি? π/6 বা 30 ডিগ্রি, আইদার π/6 ইন রেডিয়ান ফরম্যাট অর 30 ডিগ্রি। এবার বড় ক্লাস হওয়াতে সমস্যা কি হয়ে গেছে? ছোট ক্লাসে তো একটাই কোয়াড্রেন্ট আছে 0 to 90, তো এখানে 60 30 ডিগ্রি হয়েছিল।
अप टू क्लास 10 ओनली दिस मच वाज देयर, ठीक है, 0 to 90, आगे का कहानी था ही नहीं। এখন আগেও কাহিনী আয় বসে। Now if it is in 30 degree, then it can 2 quadrant angle, it can give you 2 quadrant angle। यहाँ पर भी sin 30 हाफ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट से भी sin 30 हाफ आएगा। बट इसका आंसर तो we will say from this side, that is okay, यहाँ से यहाँ तक बोल देंगे, और इसका आंसर we say from here to here। Actually we say this is the absolute angle and this is quadratic angle। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो थीटा का आंसर क्या हो जा रहा है? π/6, और एक क्या बनेगा 150 डिग्री, पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। ये भी 1, उस पर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 11 में तो तुम घूम सकते हो और एक बार घूम के आया, ठीक है, इसमें भी खत्म नहीं हुआ और एक बार घूम के फिर से आया इधर, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो घूम के आने के बाद क्या बनेगा? 2π + π/6, ठीक है ना, 2π पूरा घूम के फिर π/6। दूसरा वाला क्या बनेगा? पूरा घूम के फिर 5π/6, मतलब अभी आंसर आते रहेगा, समझ में आया? डॉट 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 डॉट। सो इट गिव्स ए इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशंस इनफिनिट बन सकता है। एक बार घूमने से विल गेट 2 सॉल्यूशन, ठीक है, और बार बार घूमने से विल गेट डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो इसमें 2 नाम है इसका सॉल्यूशंस का। तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका 2 नाम हो गया, एक हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बोल रहा है कि यू विल रोटेट ओनली 1 टाइम्स, एक बार घूमो, 0 से लेके 2π तक, 2π इंक्लूडिंग है, 0 से लेके 0 इंक्लूडिंग है, 2π और 0 तो एक ही बात है, इसलिए दोनों के इक्वल टू नहीं दे रहा है, 0 के साइड में इक्वल टू है, 0 से लेके 2π तक, मतलब एक बार रोटेशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 1 रोटेशन, मतलब एक से ज्यादा मत घूमो, बाकी तो हमको पता है वही चीज रिपीट होगा। और इसमें क्या है सब, इसमें और मतलब इस यहाँ से अगर देखें इस क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किया, छोटा सा एक क्वेश्चन, सिर्फ इन दोनों को लेंगे तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक बार घूम के आ गया, ठीक है। और अगर पूरा को लेंगे, इफ आई टेक द एंटायर सीरीज डॉट 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 लेके, देन इट बिकम्स ए जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? अब देखो जनरल सॉल्यूशन अगर लिखने बोले तो डॉट डॉट देके लिखने से तो खत्म नहीं होगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन में कुछ ऐसा फॉर्मूला टाइप का बना देते हैं हम लोग, मशीन टाइप का है, उसमें एक एक करके वैल्यू डालते रहेंगे, एक एक करके आउटपुट आते रहेगा। मतलब कुछ एक मशीन बनाएंगे, उसमें n का वैल्यू डालते रहेंगे, तो ये एक एक करके आंसर ऑटोमेटिक आते रहेगा, नहीं तो कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली वी राइट ए एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सम वेरिएबल्स n, देन वी प्लग इन द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 करके, ताकि एक एक करके सारे आते रहे, ठीक है। इस टाइप को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। इन्वॉल्व्स ए काउंटर एंड काउंटर তোমরা বুঝছো আইপি তে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ কাউন্টার कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग কোনো কিছু কম্পিউটারে छोटा मोटा प्रोग्राम कभी किया, व्हाइल लूप को चलाया, लूप फॉर लूप व्हाइल लूप, কোনো প্রোগ্রামিং করছো না। যাই হোক, কাউন্টার মিন্স একটা ভেরিয়েবল থাকে যেটার ভ্যালু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হয়ে থাকে, এন্ড নিউ ভেরিয়েবল নিউ ভ্যালুজ गिव मी न्यू आंसर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर। n बोल के एक काउंटर लगाते, n इज ए नेचुरल नंबर, वी कीप ऑन प्लगिंग द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4, ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, 1 देने से ये आएगा, 2 में ये, 3 में ये, 4 में। तो जनरल सॉल्यूशन में ऐसे एक्सप्रेशन लिखने के लिए वी नीड टू गिव सम नेम टू द आवर मेन एक्सिस। जो 2 एक्सिस था अपना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन दोनों एक्सिस का नामांकरण करते हैं। जैसे बच्चे जो पैदा होता है नाम रखते हैं ना हम लोग, ठीक है, ऐसे नाम रखेंगे इन दोनों का। कैसे नाम रखेंगे इसका? जैसे आपने को तो पता है इसका नाम क्या था, पहले 0 था, फिर ये था π/2, ये है पाई, पाई बोलने से आपने को पता चलता है ये लाइन है, और ये है 3π/2, ये है 2π, फिर क्या है ये 5π/2, फिर ये क्या है 3π, फिर ये क्या है 7π/2, फिर ये क्या है
4 पाई और लिखने का जरूरी है। आई थिंक यू विल गेट द फ्लो नाउ। ठीक है, ऐसे करके आते रहेगा। अब चीज देखो, इन लाइन को ध्यान दो, ये वाला पूरा लाइन को ध्यान दो। किसको? इसको हम डॉट कर रहे हैं, द एंटायर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको बुलाना पड़े, जैसे तुमको बुलाते हैं नाम से बुलाते हैं, हमको बुलाते हैं नाम से, सबका एक एक नाम है। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन को किसी ने बुलाया, आ जाओ आ जाओ, क्या बोल के हम बुला सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आ रहा है? पाई का मल्टीपल सारे आ रहा है। देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई आर कमिंग ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसलिए जब भी नाम बुलाना होता है इसको, इसका नाम दे देते हैं हम लोग n पाई। इसका नाम क्या हो गया? n पाई। पूरा n पाई बोलने से क्या हो जाएगा? एंटायर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया n पाई। अभी आपने को मान लो सिर्फ ये वाला को बुलाना है, आधा वाला पोर्शन। इसको अगर बुलाना है तो इसका क्या नाम रखेंगे? इसका क्या है? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। मतलब क्या, कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं? 2n पाई। Where my n is, n belongs from 0 1 2 ऐसे करके है, सेट टाइप का कुछ, मतलब n का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। कोई किसी बुक में यू विल फाइंड n will start from 1। n अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। n 1 से स्टार्ट करेंगे, हमको इसको लिखना पड़ेगा n - 1 पाई, तब 0 आएगा। क्योंकि n 1 से स्टार्ट करने से डायरेक्ट पाई से स्टार्ट हो जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। अगर 0 चाहिए हमको, इफ आई वांट टू पुट, मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं किसी बुक में इसको, चलो वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल n 0 से याद रखो। हम बाद में एक बार कंप्लीट होने के बाद विल ट्राई टू राइट इट विद n = 1 आल्सो। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जेई में थोड़ा ट्रिक करता है, बाकी तो तुम्हारे ऊपर होता है। मान लो इसको नाम देना है, इस एक्सिस को, सिर्फ ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या है? नाम क्या है इसका? पाई 2 पाई पाई 3 पाई 4 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल का हम क्या लिख सकते हैं? 2n + 1 2n + 1। देखना 2n + 1 विल ऑलवेज गिव यू ऑड नंबर। n का वैल्यू बैठाओ, 0 बिठाने से 1 पाई, n का वैल्यू 1 बैठाओ तो कितना आएगा? 3 पाई। n का वैल्यू 2 बिठाओ, 2 4 4 + 1 5 पाई। समझ में आ रहा है ना? यहाँ n का वैल्यू जैसे समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है? n का वैल्यू 0 बिठाया 0 पाई, 1 बिठाया 2 पाई, 2 बिठाओ 4 पाई, ये सब आता है। नाम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के एक नाम दे दिया, राइट हैंड साइड के एक नाम दे दिया, पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक नाम हो गया। ठीक है, अभी मान लो कि वर्टिकल एक्सिस को आपने को नाम देना है। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस, ऊपर वाला पोर्शन। सो वर्टिकल एक्सिस को अगर नाम देना है तो वर्टिकल एक्सिस को कैसे नाम देते हैं हम लोग? ये अच्छा है। वर्टिकल एक्सिस क्या है? π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2। मतलब कौन सा मल्टीपल आ रहा है यहाँ पर? π/2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो पूरा का नाम क्या बन जाएगा? 2n + 1 π/2। पुट करो n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ से लेके 0 पुट करो तो 1 π/2, 1 पुट करने से 3 π/2। समझना है? अभी मान लो उसमें से भी हमको ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ कलर ही खत्म हो रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। क्या होगा ऊपर में? 1 π/2 5 π/2 9 π/2। ये क्या है? एक एपी टाइप का बन रहा है। एपी पढ़े हो तुम लोग? ठीक है, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? n π/2 11 π/2। ये क्या बन रहा है? मतलब π/2 तो है, और सामने जो है एपी का nth टर्म है। पहले में 1, फिर 5, फिर 9, फिर 11। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a plus n - 1 into
ए कितना है इधर 1, एन तो एन है, एन तो अपने को नहीं पता, एन का वैल्यू डालेंगे एक एक करके टर्म आएगा, और डी कितना है इधर 4, तो क्या बनता है ये 4n माइनस 3, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 4n माइनस 3, लेकिन 4n माइनस 3 में एक गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, n का वैल्यू अगर तुम देखो एपी में n जीरो, एपी में जीरो टर्म बोल के कुछ नहीं होता है, एपी कहाँ से शुरू होता है फर्स्ट टर्म से, तो लेकिन हम तो जीरो से लिख रहा है, तो एक्चुअली जीरो के लिए तुम जीरो डालो, इसका वैल्यू कितना आएगा -3 आ जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं, पहला तो π/2 है, ये एक्चुअली किसके लिए है, दिस इज फॉर n इक्वल टू अगर हम -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर एक चीज तुम देख सकते हो कि 4 का मल्टीपल का थोड़ा एक बात, 4 + 1 8 + 1 9 के बाद ये 13 है, 12 + 1 ऐसे करके जा रहा है, सो इट इज एक्चुअली 4n + 1, तो अपना हम लोग जो लिख रहा है 4n + 1 इंटू पाई, इसका नाम ये वाला जा रहा है, बोले सर ये क्या है, ये तब है जब n इक्वल टू -1 बनेगा, ठीक है, n इक्वल टू 1 होने से एपी के हिसाब से, ठीक है, अदरवाइज n इक्वल टू 0 होने से क्या हो जाएगा π/2, फिर 1 देने से 5π/2, फिर 2 देने से देखो 9π/2, ऐसे करके आपने को अगर नीचे वाला चीज को मार्क करना है तो क्या करेंगे, मान लो इसको, ये क्या है देखो, ये 4 का मल्टीपल का एक कम है, सो 4n माइनस 1 है, n का वैल्यू 0 डालो, नहीं आएगा ना, तो 4n + 3 कर देता है, 3 ज्यादा कर देता है, या फिर 1 माइनस या फिर 3 ज्यादा, सो विल राइट इट 4n + 3, अब ठीक है, 0 देने से 3π/2, 1 देने से 7π/2, फिर देने से 11π/2, अभी जो भी हम लिखा है ये सब किसके लिए है, फॉर व्हाट, whatever I have written till now, this is for n equal to this one. Now मान लो कौन सा कलर यूज नहीं हुआ अभी तक, white, मान लो कि n इक्वल टू अगर 1 से लिखना है हमको, इसको ऐसे भी लिखता है, या फिर बोलते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, ये सब सेट का सिंबल है, एक ही बात है, दोनों सेम बात, इसमें कह रहा है 1 2 3 4 होगा, इसमें बोलते हैं नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4, अगर ऐसा है तो सारे चीज का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हर जगह के नीचे मैं व्हाइट कलर में लिख रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या बन रहा है, जैसे ये था n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1 × पाई, तब हम जब 1 डालेंगे 0 से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 देने से हो जाएगा, क्या चाहिए अपने को 1 में 0 आना चाहिए, 2 × n - 1, 1 देने से देखो 0 आ जाएगा, 2 देने से 2π आ जाएगा, 3 देने से 4π आ जाएगा, व्हाइट वाला क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, इसका और एक वर्जन है, अगर हम 1 से लिखना चाहें हर एक चीज का, इसमें भी क्या बन जाएगा, ये 2n - 1 पाई, n इक्वल टू 1 डालने से देखो पाई आएगा, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ, ये वाला ये इसका वर्जन, ठीक है ना, इसका n इक्वल टू 1 में वर्जन हो जाएगा 4n - 3 × पाई, n इक्वल टू 1 डालो, यहाँ से आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2n - 1 पाई, ये क्या बन जाएगा 4n - 1, ये कहाँ से चालू होने से, n इक्वल टू अगर 1 से चालू हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर जो व्हाइट लिखा है हमने, तो जेई वाला क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ रहता है, दे फ्रेम इक्वेशंस कभी 0 देके कभी 1 देके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है, उस हिसाब से ये एक्सिस का कैसे नामांकन हुआ है, नाम तो जानना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कैसे नाम दिया हमने इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट तो सीखो, ये भी जरूरी है, डायरेक्टली तुमको याद रखना है किसका क्या नाम है, मोर देन दैट द इम्पोर्टेंट इज हाउ दिस नेम की, कैसे नाम दे दिया, ऐसे नहीं कि इट इज एन आर्बिट्ररी, ठीक है, एक बार आपने को नाम पता चल गया, लेट्स ट्राई टू फाइंड एक एक करके, मान लो साइन का कुछ एक इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा मतलब जो हमको पता है बेसिक वाला, सबसे पहला वाला, जैसे फॉर एग्जांपल
एक एग्जांपल देके करने से इजी होगा। से sin थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो इसको हम लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू साइन, वो पहला रोटेशन से जो आता है उसमें से एक लिख देता है। तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, हाफ को अगर देखेंगे तो सबसे पहले घूमना चालू करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा π/6। तो यहाँ अल्फा क्या है, π/6। समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्फा। मान लो इस टाइप का आया तो फाइनली हमको थीटा इक्वल टू समथिंग लिखना है, एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ताकि जरा सॉल्यूशन लिखना है। पार्टिकुलर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो इजी है, एक बार घूम के देख लो क्या है, दो ही आंसर आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हर एक के लिए दो दो क्वाड्रेंट है। समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। अगर इस टाइप का सिचुएशन आया तो देखो साइन में मान लो पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू डालोगे तो अल्फा क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है अल्फा, या फिर यहाँ पर 30 डिग्री वाला एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारा आंसर होगा, योर आंसर विल बी आइदर डायरेक्टली दिस वन और दिस वन। ठीक है, मतलब समहाउ तुम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में लैंड कर सकते हो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में लैंड किया, इधर लैंड किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इधर अगर मैं फंस गया घूमते घूमते, मान लो इधर आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से मिलेगा। मान लो घूमते घूमते मैं इधर आया तो थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस करने से ये वाला वैल्यू आएगा। जैसे मान लो घूमते घूमते हम 180 आया तो 180 से 30 माइनस करके आंसर करना पड़ेगा 150। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इधर आने से प्लस करना पड़ेगा, इफ आई लैंड समवेयर हियर देन आई हैव टू ऐड करने से ये आएगा, ठीक है ना। इफ आई लैंड हियर देन आई हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग। तो ये वाला किसका मल्टीपल था, इवन मल्टीपल था, ये वाला क्या था, ऑड मल्टीपल। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं n पाई में पहुंच गया, मान लो कहां पर मैं पहुंच गया n पाई में, उसके साथ में इवन होने से प्लस करूंगा, ऑड होने से, इवन जगह में अगर खड़ा हूं तो ये इवन का जगह था और ये ऑड का जगह था। इफ यू कैन रिकॉल योर, ये इवन का था 2n पाई और ये 2n+1 दैट इज ऑड नंबर का। दुनिया में ऐसा कौन सा मशीन है जो इवन में प्लस देता है ऑड में माइनस देता है? ऐसा एक मशीन बनाना पड़ेगा अपने को जो इवन में प्लस देता है ऑड में माइनस देता है। ये है वो मशीन, -1n। ये हो गया इसका आंसर। अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होगा तो ये होगा इसका आंसर। देखो -1n इवन करो, इवन करने से क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ऑड करने से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इससे बन जाएगा, जैसे अपना जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल था, उसका आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n अल्फा क्या हो जाएगा, π/6, जो हमने निकाला 30 डिग्री। n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, अपन ने ये 0 वाला लिखा है, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी शायद 0 वाला ही ले लेगा वो लोग। एनी इंटीजर मीन्स इट कैन बी प्लस माइनस, ये भी लिख सकता है, इट कैन बी एनी इंटीजर ऑल्सो। ये वाला जो था अपना, जो पहले लिखा था हम लोग ने, ये वाला दिस वन, दिस कैन बी एनी इंटीजर ऑल्सो, आई भी लिख सकता है या फिर z भी लिख सकता है, बोथ रिप्रेजेंट इंटीजर, मीन्स इट कैन बी +-1 ऑल्सो। -1 से उल्टा तरफ से घूम रहा है, एक ही बात है। समझ में आ रहा है। अभी ये तुम वैल्यू पुट करो, जैसे इसका आंसर अपने को पता था, क्या था आंसर, पहले था 30 डिग्री, फिर क्या था 150 डिग्री, फिर एक बार पूरा घूम के आएगा तो 360 + 30 390, फिर 360 + 150 कितना होगा 510। ऐसे करके वैल्यू आते रहेगा ना। तुम अभी डालो इसमें वैल्यू, n = 0 डालो, क्या आएगा, सबसे पहले 0 डालने से ये 0 कितना आ गया 30, फिर 1 डालो, क्या आएगा 180, ये माइनस आएगा -30, कितना आ गया 150। समझ में आ रहा है। n = 2 डालो, कितना हो जाएगा 2 पाई मतलब 360, 2 होने से ये इवन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 390। सारे सीरीज आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी यू गॉट इट, कैसे आया। तो ये एक मशीन बन गया साइन के लिए। तो कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हुए लास्ट में हम यहाँ पर, पहले तो हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लास्ट में हम यहाँ पर आ पहुंचे, देन यू विल से इसका आंसर साइन होने से। दिस इज फॉर साइन, इजी था। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होने से तुम ये देखो, तुम अच्छा एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आई विल कंपाइल इट। एक बार बुक में पूरा एक साथ दिया होगा।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसके लिए, cos theta equal to cos alpha। अभी और एग्जांपल का जरूरत नहीं, you got it, what is alpha, you got it, alpha is the first value that you will encounter। जैसे cos theta equal to मान लो हमने दिया cos theta is equal to -half। अब थीटा क्या हो जाएगा, इसमें दो तरीके से लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर है आपने को पता है नहीं, cos थीटा माइनस कहाँ पर है, दो जगह पे, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने को यहाँ मिल जाएगा, तो cos थीटा क्या लिखेंगे हम, cos किसका वैल्यू हाफ होता है, cos 60 डिग्री, 60 मतलब एक क्वाड्रेंट टू 120, सो पाई बाई 2 पाई बाई 3, cos 120 मतलब 60 का वैल्यू आएगा, 60 मतलब यहाँ पर 60 डिग्री चाहिए अपने को, तो यहाँ से 120, समझ में आया, ये तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अभी देखो cos थीटा का दो वैल्यू होता है, माइनस वाला लिखा, माइनस वाला थोड़ा चाप हो जाएगा, फॉर्मूला समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला 60 यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, ठीक है, फॉर्मूला के लिए इससे देखो इजी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब हम समझ गए कि इधर होगा अल्फा या फिर इधर होगा, तो अपना जब हम आंसर करेंगे आइदर ये वाला, मान लो यहाँ पर खड़े है तो थोड़ा प्लस कर देंगे, ठीक है ना, या फिर थोड़ा माइनस कर देंगे। मान लो हम 2 पाई में खा रहा है 360, तो 360 प्लस 60 डिग्री, 360 प्लस 60 या फिर 360 माइनस 60, या फिर मान लो 0 में है ये 0 प्लस 60 या फिर 0 माइनस 60, दोनों आंसर है। तो आपने को किसको बुलाना पड़ेगा इसके लिए, वी हैव टू कॉल ओनली दिस पोर्शन, यहाँ पर खड़े होने से हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह में खड़े होकर आंसर नहीं मिलेगा। तो कहाँ आना पड़ेगा हमको, इधर इसका नाम क्या था, इसको कैसे बुलाते थे हम लोग, 2n पाई, और क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस अल्फा, कोई भी एक करो, प्लस करने से ऊपर वाला आएगा, माइनस करने से दो आंसर आएगा, n का वैल्यू हम डालते रहेंगे, विल गेट 1 बाई 1 वैल्यूज। तो कॉस तो और भी आसान हो गया, इजी हो गया। ना नेगेटिव बोले तो अल्फा ही था, मान लो इसका आंसर करना है तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। मान लो इसका आंसर करना है तो हमने क्या लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस हो माइनस हो, तुम सिर्फ देखो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, जो वैल्यू होगा सबसे पहले जब हम घूमेंगे, सबसे पहले जो जहां पर मिलेगा वो मेरा अल्फा। वी कैन टेक एनीथिंग अल्फा, लेकिन जो सबसे पहले मिल जाता है हम उसको ले लेते हैं, कन्वेंशन है, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है, cos थीटा तो और भी आसान था, sin थीटा थोड़ा मुश्किल था, हमको एक चीज इन्वेंट करना पड़ा है, नया चीज हमने आविष्कार किया, जो इवन में प्लस होता है ऑड में माइनस होता है। फिर आएगा tan थीटा इक्वल टू, अब तो तुमको पूरा समझ में आया अभी और एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है, कभी करते करते अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ गया, अल्फा क्या है नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो tan के लिए कहाँ होगा बेटा, पाई बाई 4, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है, लेकिन आंसर करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है अल्फा या फिर यहाँ पर हो सकता है अल्फा, लेकिन आप आंसर करेंगे कहाँ से, ये तो क्वाड्रेंट एंगल हुआ, आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर हम ये लाइन पे खड़े हैं, मान लो यह लाइन पे घूमते घूमते तुम यहाँ पर खड़े हो, इधर आने से भी प्लस करना पड़ रहा है, इधर आने से भी प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, या फिर यहाँ आगे बढ़ो, तो मतलब पूरा इस लाइन को बुलाओ, तुम बुला के प्लस कर दो, तुम अगर यहाँ खड़े हो तब भी प्लस करना है, वहां खड़ा होने से तब भी प्लस करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा को बुलाने से n पाई हो जाता है प्लस, ये तो और आसान हो गया tan थीटा वाला। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस देयर आर सम स्पेशल केसेस, ठीक है, ये तो अपन ने कर लिया, कुछ स्पेशल केसेस है, आगे बढ़े। जैसे मान लो जीरो वाला ना, sin थीटा 0 cos थीटा 0 tan थीटा,
देयर आर स्पेशल केसेस, मान लो sin थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपने को पता है sin थीटा कहां पर 0 होता है, ये पूरा लाइन पे, तो फार्मूला का जरूरत नहीं होता, वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, हालांकि फार्मूला यूज करने से भी आएगा, बट 0 इज डायरेक्टली वी कैन से cos थीटा इक्वल टू 0 है। cos थीटा कहां पर 0 है, आपने को पता है, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये तुम फॉर्मूला लगाने से नहीं होगा। अगर मान लो इसको हम पहला वाला फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू sin 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू अल्फा होने से क्या था, फॉर्मूला क्या था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 0 अल्फा, ये तो 0 से इंटू करने से 0 n पाई, सॉरी ये 2 क्यों लिखा है, ये तो 2 नहीं होगा, ओनली n पाई। ठीक है ना, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को बुलाना है n पाई, लेकिन cos में अगर हिम लगाएंगे तो नहीं होगा। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू cos क्या होता है 90 डिग्री, तो थीटा का क्या फॉर्मूला था, cos थीटा का क्या था 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा, तो देखना किताब में कभी ऐसे आंसर दिया रहेगा। तो cos थीटा 0 के लिए जनरली ये स्टैंडर्ड है, इसको यूज नहीं करते हम लोग, इसको यूज करते हैं। हालांकि वो पहला का फॉर्मूला से यहाँ है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है ना, 2n पाई में खड़ा हो गया, एक पाई बाई 2 एक माइनस पाई बाई 2, बट दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट। tan थीटा 0 पुराने यहाँ से, अगेन दिस वन इज tan थीटा 0, ये पूरा लाइन, तो इसका क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। These are 3 special cases। ठीक है, irrespective of that we have another one, last one। मान लो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, स्क्वायर है, तो इसमें से क्या होगा, sin थीटा क्या हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, sin थीटा क्या हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। प्लस हाफ मतलब कहां से आंसर आएगा, यहां से 30 डिग्री या फिर यहां पर 30 डिग्री। माइनस हाफ मतलब कहां से आंसर आएगा, यहां पर 30 डिग्री या यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, दो आंसर प्लस के, दो क्वाड्रेंट प्लस के लिए खुलेगा, दो क्वाड्रेंट माइनस के लिए खुलेगा, और दोनों को मिला के कंबाइन, मतलब तो कहां पर हो सकता है मेरा आंसर, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, कहीं पे भी 30 डिग्री हो सकता है। तो मतलब क्या है, हम अगर इस लाइन में खड़े हो तो प्लस करे या फिर माइनस करे, कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई कहीं पे भी खड़े हो प्लस माइनस पाई, स्क्वायर होने से ही हो जाता है। कौन सा होने से, स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होने से। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होने से भी वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव cos का कहां से आएगा, इन दोनों जगह से पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव कहां से आएगा, इन दोनों जगह से नेगेटिव आएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वही चारों यही बनेगा। इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, आंसर का भी यही है। स्क्वायर में सबका आंसर सेम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली चारों क्वाड्रेंट आना है। तो हम बीच वाला लाइन में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़े हैं तो वी कैन डू प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, अब किताब खोलो, कौन सा पेज नंबर है देखो, पूरा एक साइड कंपाइल करके ये वाला है टेबल 599, नीचे एक टेबल है देखो 599 पेज देखो, समरी करके जो दिया है, स्पेशल वाला, पहले मैंने सेकंड वाला किया, फिर मैंने स्पेशल 1 किया, फिर मैंने लास्ट वाला किया। ठीक है, किताब में दीज आर ऑल इंटीजर्स। अभी तुमको एक चीज याद आएगा, एक चीज देखोगे, बोले सर नाम तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत था, फालतू आपने काहे इसका नाम पढ़ाया हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसका सिर्फ होने से हो जाता था, कभी इसको बुलाया कभी आधा, इसका भी जरूरत नहीं, बट इसका जानना जरूरी है, क्योंकि जेई में वो लोग करता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। ठीक है ना, वहां बनाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नहीं आएगा जेई में, ये फॉर्मूला सीख लिया इससे नहीं आएगा, वो नाम से बुलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा तुमको वहां पर आंसर। ठीक है, तो नाम याद रहने से इट इज इजी। अच्छा, इसको बुला के फिर प्लस करेंगे माइनस कर, जैसे मतलब कहाँ से आया, डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिस जिस टॉपिक में डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है आई विल शो द डिराइवेशन, और बोल भी दूंगा इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कहाँ से आया, सिर्फ फॉर्मूला सीखने से नहीं होगा, और कुछ कुछ का जरूरी नहीं है तो उसका जरूरी नहीं है। ओके, अगर आपने को ये सब पता चल गया, सो इट इज टाइम टू स्टार्ट सम
सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। 17 एक्सरसाइज 17 होगा। पहला वाला देखो बोला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यू कैन अंडरस्टैंड, क्या बोला है मतलब एक बार घूमना है, पूरा नहीं घूमना है। एक बार घूमने वाला तुम ड्रॉ करके भी लिख सकते हो, या फिर यू राइट द जनरल सॉल्यूशन, उसमें n का वैल्यू 0 या 1 बेटा हो जाके एक बार घूम के जो आया, या फिर खुद से सोच के भी कर लो, तुम्हारे ऊपर, सोच के कर सकते हैं चीज़, जरूरी नहीं यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, ड्राइंग करके भी हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, एक में करा देता हूँ, फिर बाकी तुम 2-3 ट्राई करो। जैसे sin x इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ एग्जांपल करते हुए करा दिया था, ठीक है। sin x इक्वल टू √3/2, तो तुम ड्रॉ करो, इसलिए ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वाड्रेंट एंगल जानना और एब्सोल्यूट एंगल जानना, जो मेथड हमने बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड। नाउ ये टॉपिक में तुमको पता चलेगा क्यों हमको इंपॉर्टेंट। √3/2 मतलब क्या है, 60 डिग्री। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। जनरलिटीज अभी हम लोग पाई में लिखते हैं, कि हम लोग बड़ा हो गया अभी, so write it in π/3। so therefore x क्या होगा, एक हो जाएगा डायरेक्ट π/3 और एक हो जाएगा पाई माइनस π/3। देखना आपने को आंसर करना है यहाँ से, we have to answer it from here, ठीक है ना। ये वाला का आंसर हमको यहाँ से करना पड़ेगा। so क्या हो गया, एक हो गया π/3 कॉमा 2π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एक ही बार घूमना है, एक बार घूमने से, और इधर तो नहीं मिलेगा, नीचे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे तो माइनस मिलेगा, अगर माइनस होता तो नीचे जाके मिलता 2 को। तो ये तो मैंने करा दिया, तो यू विल डू थर्ड वाला, फिर माइनस नहीं है इसमें, चलो बच गया, माइनस नहीं है। सेक वाला कर लो, एक sin 10 सेक हो जाएगा तीनों। 1 कर लिया, 3 और 6 करो। आई थिंक दिस थिंग कैन बी डन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन प्रिंसिपल, इसमें माइनस बोल के है, तो देखो थोड़ा माइनस वाला करते हैं। लास्ट वाला को किया था, अभी माइनस वाला। लेट मी अगेन मार्क सम क्वेश्चंस। पहला वाला साइन वाला एक कर लो, एक कॉस वाला √2 देके है, घुमा लो। एक you do these 3 questions, 10 1 है ना, okay, you do these 4 questions, 1 2 5 6, 4 questions करो, सेम questions but now with a minus sign। एक दिखा दो क्या, 9 और 9 और पहला। जैसे sin x इक्वल टू क्या है, -1, तो -1 मतलब अगेन तुम देखो कहाँ पर मिलेगा -1, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 30 डिग्री, सॉरी 30 तो हम लोग बड़ा हो गया हम लोग, π/6 सो व्हाट विल राइट, x इक्वल टू, एक बार घूमेंगे यहाँ से लेके, इसको -π/6 नहीं लिखेंगे, अपने को आंसर ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ एक और एक यहाँ, ठीक है ना, पूरा घूम के। तो एक हो जाएगा पाई प्लस π/6 और एक हो जाएगा 2π माइनस π/6, पूरा से ये π/6 माइनस कर दिया, 7π/6 और एक होगा 11π/6, ठीक है। ऐसे करके बाकी दोनों, ओके चलो তাহলে এটাও দেখানোর কোনো দরকার তো এসা আছে নাই। নেক্সট উইল মুভ টু নেক্সট ব্লক। नेक्स्ट ब्लॉक इज विच वन, अच्छा ये फिर स्पेशल केस वाला है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, नाउ इट इज जनरल सॉल्यूशन मींस नाउ यू हैव टू राइट इट, क्या बोलते हैं, वी यूजिंग n। चलो मैं इसमें से तो कुछ मार्क किया हुआ है यहाँ पर 1 3 5, लेट मी शो द थर्ड वन। वन तो इजी है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। थर्ड वाला मैं दिखा देता हूँ, देखो इट इज 0, तो आपने को क्या पता है, साइन थीटा अगर 0 है तो 0 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था, 0 मतलब कौन सा लाइन था, तो थीटा इक्वल टू क्या था, पूरा वाला लाइन, पूरा वाला लाइन क्या हो जाएगा n पाई। तो आपने को x निकाल के देना है उधर, x इक्वल टू बाकी सबको उधर भेज देना, ठीक है ना। ये वाला थीटा जैसा काम कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आपने को पता है ठीक है, दिस इज वर्किंग लाइक थीटा, तो आपने को पता है थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है फॉर्मूला, उस हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो नाउ यू सॉल्व दिस अदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 and 1, इन दोनों को सॉल्व करो। 3 तो ऑलमोस्ट हम कर दिया, 6 उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट पेज ना। अच्छा इसमें से 9 वाला है, 9 वाला कर लो, पहला वाला सॉल्व दिस वन छोटा मोटा है, ठीक है ना। 9 वाला पहला क्वेश्चन देख के 9, फिर बाकी ये सब टिक करो। आई थिंक कुछ कुछ तो हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट सॉल्विंग है, जैसे यहाँ 9 करो ये सब हो जाएगा। दीज आर इजी थिंग्स। यहाँ तक तो हो जाना चाहिए, 8 तक तो आसानी से हो जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। 9 के बाद आई विल शो, और इसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो देन आई विल शो, अदरवाइज यू ट्राई सॉल्विंग दिस वन, ठीक है। ये सब करो কোনটার মতই তো পরে থ্রিতে একটু আই করে এলে এরকম টাইপের এক নাম্বার না 3 নাম্বার আগে কোনটা জানি করছি না sec x equal to root 2, तो sec तो আমি জানি না, I will always change it to sin cos या फिर tan। तो cos x equal to root 2 सबसे पहले कहाँ मिल जाएगा अपने को, फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा, पाई बाई 4 में मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू cos के लिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, वो याद रखना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, बस ये हो गया आंसर। क्या फॉर्मूला यूज किया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, so therefore theta is equal to 2n pi plus minus alpha। কোনটা দেখাতে হবে আর So I think we have completed up to কত পর্যন্ত 8 হয়ে গেছে। sin স্কয়ার মানে ওই sin স্কয়ার তো কি ফর্মুলা লিখেছে n পাই প্লাস মাইনাস এটা না √3/2, তাহলে 8 এর 2 টা लेट मी शो, এটা প্রবলেম और पास हो सकता है 8 का 2 কি হবে, sin স্কয়ার 4 sin স্কয়ার x equal to 3 which will give you sin x equal to plus minus √3/2 which will give you sin x equal to, क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस माइनस साइन प्लस माइनस को नहीं होगा, इससे नो नीड टू राइट दिस वन, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बन जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 मीन्स, ठीक है, कहीं पे भी रखो। ओके, दिस इज अप टू 8 2। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। इसमें क्या है, अभी जैसे टिक तो कर लिया तुम लोग, ठीक है ना, 9 टिक कर लिया, टिक कर लो, 9 का 1 11 14 17 जो है वो टिक कर लो, 18 20 21, you tick all these questions, ठीक है। So we'll start with 9(1). cos x equal to cos 2x। अपना आइडिया क्या होता है इसमें करने के लिए, जेई में एक स्नैपशॉट मिलेगा कैसे करता है पूरा चीज को एक साथ, बट वी विल ट्राई टू डू इट। हम मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि एक सिंगल में लाएंगे, cos या sin या tan या फिर कुछ ऐसा, और जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos c माइनस cos d है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्रिटिकल टिपिकल वाला केस था, आईसीयू वाला पेशेंट था, ठीक है ना, sin c माइनस sin d माइनस c। इसमें से तुमको क्या आ जाएगा, आइदर दो पार्ट आ जाएगा, ठीक है, e i t h e r, आइदर sin 5x/2 इक्वल टू 0, और इसका दो सॉल्यूशन होगा, माइनस हटा दो, माइनस तो एक ही बात है, sin माइनस इज माइनस,
माइनस तो जीरो के साथ जाके माइनस ही हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 5x/2 पूरा n पाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाई 5, और यहाँ से क्या बनेगा x/2 इक्वल टू n पाई, यहाँ से बन जाएगा 2n पाई। तो ये हो गया आंसर, आइदर 2n पाई बाई 5 और 2n पाई। लेकिन ये चीज में कभी कभी जैसे बोर्ड में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कभी क्या हो जाता है क्योंकि वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन रेशियो टू अनदर रेशियो, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से चेंज करके हमने दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चला गया आधा TR, तो थोड़ा ध्यान देना जो ओरिजिनल इक्वेशन में उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर 10x है और तुम्हारा कोई सोल्यूशन में x इक्वल टू π/2 आ गया या फिर वर्टिकल लाइन आ गया कोई पे भी सोल्यूशन में, तो ये यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा क्योंकि 10x के अंदर वर्टिकल लाइन बैठने से क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सोल्यूशन में ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक रेशियो से दूसरा रेशियो में आ रहे हैं, तो कभी भी मेरा आंसर ओरिजिनल जो है उसको कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेना ओरिजिनल वाला कौन सा है, उसमें ये डालने से कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम इफ आई पुट दिस वैल्यू 2n पाई मींस हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं इसमें cos के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी कुछ एक एंगल है डाल सकते हैं cos के अंदर। डालने से अगर प्रॉब्लम हो गया जैसे 10 के अंदर 90 डालने से प्रॉब्लम हो गया, cot के अंदर 0 डालने से प्रॉब्लम हो गया, पाई डालने से प्रॉब्लम हो गया, 2 पाई डालने से प्रॉब्लम हो जाएगा cot में। tan और cot में जनरली ध्यान देना पड़ता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1/sin x था 1/cos x था, तो अब 0 भी नहीं, तो हम पाई भी नहीं डाल सकते इसमें क्योंकि cos क्या 90 नहीं डाल सकते इसमें फिर क्योंकि sec 90 फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान देना है sec cosec, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में अगर ये है तो तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें बिठाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, अगर एक रेशियो से दूसरा रेशियो में आ रहा है तो बोर्ड में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस विल बी इजी क्वेश्चंस ओनली, या फिर एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं टिपिकल, बट जेई में वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वन हमेशा। नंबर 11 हम किसी तरीके से देखते हैं फैक्टराइज करके या कुछ करके आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, या फिर पूरा चीज को छोटा करके कुछ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखो आराम से कॉमन चला जाता है, फैक्टराइज हो जाता है। यहाँ 2 cos x + 1, यहाँ से अगर sin x कॉमन लोगे तो 2 cos x + 1, ठीक है। पहला दो से 2 cos x sin x कॉमन लो 2 cos x + 1, नेक्स्ट से 1 कॉमन लो 2 cos x + 1, इजी। फिर आइदर दिस 0 और दैट 0, आइदर cos x इक्वल टू माइनस, अब कहां पर देगा वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू कहां देगा, cos का क्या फॉर्मूला था 2n पाई प्लस माइनस जो एंगल था माइनस, आप कहां से देगा वो, या फिर बीच में एक लाइन लिख लेना तुम cos x इक्वल टू cos माइनस, आप मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप कितने का वैल्यू आता है, cos कितना का वैल्यू 60 डिग्री, cos 60 इज सेकंड क्वाड्रेंट वाला 60 इज माइनस हाफ, दैट इज 2π/3, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, और यहाँ लिखना cos x इक्वल टू cos 2π/3, तो इजी हो जाएगा। या फिर sin x इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, sin कहाँ नेगेटिव आएगा सबसे पहले, sin का नेगेटिव कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से तुम जब आंसर लिखोगे sin हाफ मतलब π/3, ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3 4π/3, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है पाई प्लस π/3, क्योंकि ये जगह है π/3 30 डिग्री नेगेटिव है। तो फिर साइन का क्या फॉर्मूला था n पाई प्लस -1 टू द पावर n, आंसर चेक कर लेना π/6, तब तो 7π/6, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लेना और कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, दो आंसर है दिस और दिस, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। कोई एक होने से देखो इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया,
जैसे ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, जस्ट सिंपल कॉमन लेके साइड किया। उससे पहला वाला में हमने चेंज किया था, कॉस से साइन में चला गया था। इसमें देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो है वही है। हमने सिर्फ कॉमन लेके दो को इस तरफ और इस तरफ अलग कर दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा है 14। इसमें फिर साइन सी साइन टी ये सब लगा सकते हो। लगाते वक्त थोड़ा ध्यान देना है कौन सा दो में लगाओगे। ऐसे लगाना है कि बाद में कुछ काम आए। जनरली हम क्या करते हैं, कॉमन कॉमन लेके करते हैं। अगर इन दोनों में लगाएंगे तो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन टी क्या बनेगा, सी प्लस डी बाई टू, 4x/2 2x और एक बनेगा x। तो 5x के साथ क्या काम करेगा, कुछ काम तो होगा नहीं। अच्छा, फिर इन दोनों में लगाएगा तो क्या होगा, 4x एंड x होगा तो फायदा है, साइन x शायद कॉमन जा सकता है। लेकिन क्या कौन सा x आएगा, 2 sin 8x और cos x आएगा, यहाँ sin x है वो नहीं होगा। फिर इन दोनों में अगर लगाया तो क्या आएगा, हाँ इन दोनों में लगाओगे तो 3x आएगा और एक 2x आएगा, 3x ये साइन वाला आएगा। तो थोड़ा ध्यान देके लगाना है कि बाद में कॉमन जाए तो दो फैक्टर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर हम लोग फैक्टर के साथ कर रहे हैं। तो साइन x प्लस साइन कौन सा था 5x, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और 3x को अलग रखेंगे। तो यहाँ पर करने से क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू, ये हमको दिख गया था पहले से कि 3x आने वाला है, और इसीलिए हम लोग इन दोनों को एक साथ रखा, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लिया। sin 3x कॉमन चला जाएगा, so it will be 2 cos 2x plus 1 equal to 0। इसमें से आएगा sin 3x equal to 0 एक, और 2 cos 2x is equal to -1, which will give you cos 2x equal to -half। sin 3x equal to 0, x 0 होने से तो पूरा n पाई बन जाता है, x equal to 1 हो जाएगा n पाई बाई 3। इसमें भी देखना हमने कुछ चेंज किया है कि नहीं, हाँ साइन से कॉस में किया है, लेकिन हालांकि वो ओरिजिनल वाला साइन है, साइन में तो कोई भी वैल्यू डालो प्रॉब्लम नहीं होता। तो चेक करना कर सकता हो चेक, लेकिन करके ठीक है चेक कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वही रहेगा आंसर। cos 2x माने कोण ने क्या, আমি -हाफ पाऊंगा। cos কত ডিগ্রি তে, आपके पास 60 डिग्री थे, सेकंड क्वाड्रेंट 60 माने π/3 सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस π/3, सो 2π/3 थे हम कम। cos के लिए क्या था, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। इसमें से x क्या बन जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। अपना फिर दो आंसर हो गया, इधर दिस और दिस।
नेक्स्ट कौन सा है? 7। cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1। अब इधर तो जीरो नहीं है कि हम कुछ लगा दे cos c माइनस cos d ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ -1 है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे व्हाट वी कैन डू, एक तो है कि cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस cos x जब भी दिखता है हमको तो शो स्टॉपर के बारे में याद आता है, क्योंकि 1 प्लस cos x वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या था इसका फॉर्मूला, क्या है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला? प्लस होने से cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब इसमें से हमको क्या दिख गया कि cos x बाई 2 तो कॉमन चला गया, 2 तो पहले कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बन गया, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर आइदर और, इसमें से क्या बन जाएगा, वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया, ये वर्टिकल लाइन का क्या था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। इधर से कैसे करोगे, इधर 0 को हम उधर भेज दिया तो क्या होगा, cos x सॉरी यानी साइन को, फिर cos को इधर डिवाइड करने से क्या होगा, tan x बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो tan x बाई 2 क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 4। tan का क्या फॉर्मूला था, tan के लिए था कहीं पे भी खड़े हो जाओ फिर प्लस करने से हो जाता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। हालांकि यहाँ पर भी चेंज हुआ है रेशियोज, तो विल क्रॉस चेक, पर क्रॉस चेक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइन और कॉज है, तो साइन और कॉज में वैल्यू बैठ सकता है, कोई इशू नहीं, जो वैल्यू आएगा दैट वी कैन पुट। साइन बाई कॉस, कॉस को इधर लेके आ नीचे आके डिवाइड कर दिया, 1 बनेगा, डिवाइडिंग बाई कॉस x बाई 2। अदरवाइज तो चांस नहीं, इसको एक यूनिट में लाना है तो डिवाइड करने से 10 में आ गया। ठीक है ना, आंसर चेक करो, चेक करके नेक्स्ट कॉलम में आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 17 के बाद है 18। अब इसमें क्या हो गया, √3 आ गया, ये तो अलग हो गया अभी, ऐसा ना, हाँ 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 कहाँ से लिखने से हो जाना था, 1 से अगर लिखना था तो दैट मीन्स n कैन बी एनी इंटीजर, हो जाएगा, कुछ नहीं है। 2n प्लस माइनस 1 कोई भी, बोथ विल गिव यू ऑड ओनली, क्योंकि n तो इंटीजर है अभी, 0 से 1 2 सब कुछ आ गया, -1, so you can put anything। ये भी देने से कोई भी गलत नहीं होगा, इट इज आल्सो अल्टीमेटली ये है। 18 देखो सही में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, cos x के सामने में √3 आ गया, ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर नहीं होता तो हमको शो स्टॉपर जो था फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो था वो दिख जाता, लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये √3 है बोल के, अदरवाइज हमको ये दिख जाता, 1 को इधर लेके आते फिर 1 माइनस cos x ऐसा कुछ कर देते, वो सब तो हो जाना था, लेकिन एक गड़बड़ हो गया, किसके वजह से, अभी 1 को यहाँ लाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो √3 cos x है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है पहला वाला? तो यहाँ एक फॉर्मेट देख लो, ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इन ट्रिगोनोमेट्री, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, इसका बहुत कुछ देखोगे तो अभी देख लो, इसका आगे चल के बहुत बार देखोगे, बहुत जगह में इसका एप्लीकेशन।
इसको छोटा करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो इंटू भी करना होगा। अब इसमें से दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है बेटा, इसको देखो ध्यान दो, तुम अगर कोई भी ट्राइंगल लेके इसको आगे तुम कॉस अल्फा बनोगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। जैसे ट्राइंगल ले लिया, मान लो एक ट्राइंगल ले लिया, इसका एक हाइट ए है, इसका बी है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको कॉस अल्फा ले लिया, मान लो ये ए है ये बी है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम इसको अल्फा ले लिया तो कॉस अल्फा ए बाई इतना, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि तब साइन अल्फा बन जाएगा बी बाई इतना। उल्टा भी हो सकता है, इसको साइन लेने से ये कॉस बन सकता है, तो अपने ऊपर है, हम कोई भी एक ले सकता है, इसलिए हम दो पार्ट दिखाया। इसको आगे मान लो आगे कॉस अल्फा साइन थीटा, अल्फा क्या है, अल्फा अपने को पता चल जाएगा ए बाई बी जो है, अल्फा यहाँ वेरिएबल नहीं है, अल्फा यहाँ ए बी से निकल जाएगा, ये कॉस अल्फा बन जाएगा तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, देखो पूरा चीज छोटा बन गया है। सिमिलरली कोई कह सकता है कि सर हम इसको हम कॉस लिखेंगे, कॉस नहीं लिखेंगे साइन लिखेंगे, लिख सकते हो, इसको अगर साइन लोगे तो ये कॉस बन जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस वाला फॉर्मूला, तब ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कोई भी एक यूज करके हम इसको छोटा वर्जन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेट बहुत जगह में तुमको आगे मिलेगा, इससे हम इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का। साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या है, +1 से लेके +10 तक 0 था, अभी तुम्हारे लिए दोनों माइनस भी खोल गया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, +1 से लेके, नेक्स्ट दिन दिखेगा जब हम ड्राइंग करेंगे, नेक्स्ट दिन देन यू विल सी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसका इन्फिनिटी से लेके माइनस। फिलहाल ये तीन याद रखो, सेक कोसेक और कॉट वाला हम लोग नेक्स्ट दिन ड्राइंग करके देखेंगे। क्यों बोला, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू दिस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो +1 से -1 होगा, तो पूरा एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, -√² प्लस बी स्क्वायर से लेके +√² प्लस बी स्क्वायर। मान लो ये एक्सप्रेशन को हमने z ले लिया, तो z का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, क्योंकि दिस इज z। +1 होने से मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये +1 होगा ये वाला, मिनिमम कब होगा, जब -1 होगा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बहुत बार, ये 1-2 साल में आई विल आस्क यू सो मेनी टाइम्स, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, ये वाला जगह बार बार मैं पूछूंगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, सो दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, और आगे बहुत बार मैं इसको पूछने वाला हूँ, सो यू बेटर रिमेंबर दिस वन, नहीं तो आगे जाके बार बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है, ठीक है, सो रिमेंबर दिस वन। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम वही करेंगे, ये ए है मान लो, ये बी है, बी मतलब यहाँ पर 1 है, तो हम √² प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो व्हाट इज √² प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, ए क्या था 3√3 उसका स्क्वायर मतलब 2, तो इसमें 2 से डिवाइड और इंटू करेंगे। ठीक है, तो 2 से इंटू कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो किताब का आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हम इसको कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं। कॉस के लिए एक फॉर्मूला आएगा, साइन के लिए एक फॉर्मूला आएगा, जनरल सॉल्यूशन का 2 है, हाफ नहीं, हाफ तो जाने के बाद बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बनाए ना साइन बनाए, साइन इजी रहता है, तो √3/2 को क्या लिख सकता है, साइन कितना लिख सकता है, साइन 60 डिग्री।
तो ये साइन बनेगा तो ये कॉस बन जाएगा। हमने बोला था ये साइन अल्फा होने से दिस इज कॉस अल्फा। तो क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन बनेगा तो ये कॉस बन जाएगा, वही बोला था ना मैंने, एक साइन अल्फा होने से एक कॉस अल्फा। तो साइन ए कॉस और ये एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो इट विल बी साइन ए प्लस बी। नाउ इट इज इजी। ये हाफ को क्या लिख सकते हैं, साइन कितना का वैल्यू हाफ है 30। अब तो फॉर्मूला देखो, कोई अगर इसको कॉस लिखेगा तो कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। आई डोंट नो बोई किताब में कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। सो दोनों आंसर करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। किताब में अगर ये नहीं दिया है तो दैट मीन्स दे हैव चेंज्ड इट टू कॉस। उसने इसको cos 30 ले लिया, इसको sin 30 ले लिया, ठीक है। ठीक है, कौन सा इसको यूज किया ना cos को, कौन सा वाला है वही आंसर कौन सा? टू एन पाई हाँ cos में लिया है, ठीक है ना। प्लस কেন প্লাস মাইনাস হবে cos में, দুটো আলাদা আলাদা করে লিখছে। ওকে दैट इज इट। तो दे हैव यूज्ड cos वाला, दोनों आंसर करेक्ट है। यू कैन यूज बोथ वन, इसमें से थोड़ा पाई बाई 3 को उधर भेज दो। सो अपना आंसर होगा ये। cos में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये cos कितना डिग्री √3/2 होता है, cos 60। ये बन जाएगा नहीं cos 30 ये बन जाएगा sin 30। तो फिर क्या बनेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b बनेगा। तो यू कैन यूज आइदर वन, बट ये फॉर्मेट को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन के साथ में वी हैव डिस्कस, यही वाला क्लास में भी विल डिस्कस अ लिटिल बिट ऑन दिस वन। आगे बढ़े। कौन सा मार्क किया था, 20 और 21। चलो एक को करते हैं 21, एक छोड़ देंगे, यू विल ट्राई, नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन विल सी। दोनों फॉर्मेट अलग अलग है, ऐसा भी नहीं सेम है। एक कर लेता है 21 ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट दिन तो डाउट विल डिस्कस। क्या कर सकते हैं हम लोग, sin x tan x -1 tan x - sin x। हाँ देखो दिख गया, ये sin x को हम अगर इधर लेके आ जाए, इसके साथ कॉमन लेने से क्या बनेगा tan x + 1, और इधर इसको इधर कॉमन हो जाएगा, सबको एक तरफ लाके कॉमन ले लो। तो sin x tan x माइनस प्लस sin x को इधर लेके आ गया, -1 माइनस tan x, इसमें से sin x कॉमन ले लिया 1 प्लस tan x, इसमें से -1 कॉमन ले लिया 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x कॉमन ले लिया तो बनेगा sin x -1 इक्वल टू, आइदर और चलेगा, आइदर tan x इक्वल टू -1 और sin x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू tan -1 कहाँ से आता है, सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट से आता है। सेकंड क्वाड्रेंट का π/4, पाई माइनस π/4, 3π/4। क्या फॉर्मूला था, n पाई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन tan x है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि tan x से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें से क्या सॉल्यूशंस आएगा बेटा, इसमें से सारे π/2 बनेंगे, क्योंकि ये समझ में आ रहा ना, ये कौन सा लाइन है, sin x इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सॉल्यूशन को दे रहे हैं, sin x कहाँ पर 1 होता है, ये वाला पूरा 90 वाला। इसमें से जितना भी आंसर आएगा ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना, जितना भी घूम के आओगे इट विल गिव यू दिस वन एज आंसर। बट 10 में तो हम वो डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो ये वाला आंसर नहीं बैठेगा यहाँ पर, बिकॉज इन द ओरिजिनल क्वेश्चन देयर इज अ 10, so therefore these all will not be a part of your solution, only this one will be your solution। समझ में आया। यहाँ पर आके थोड़ा सा কোনটা দিছে, दोनोটা দিছে না একটা, एक ही কথা, they have used here, ये जो
कोई भी यूज कर सकते हो। 10x इक्वल टू 10 माइनस 5/4 यूज किया है, मतलब फोर्थ কোয়াড্রেন্ট वाला -1 ইউজ কিয়া। ইট ক্যান বি এনিওয়ান। এটাও দিয়েছে, তাহলে ভুল দিয়েছে। বোর্ডের বই তো যেইতে গেলে যে উইল কারেক্ট ইট। কত নাম্বার এটা? 20। এটা দিয়েছে বাট এখানে বসবে না। এটা কেন বসবে না বুঝছো তো? যে কোশ্চেন হলে দেখবো আমরা বয়তাম না, এটা বাদ যাবে, ঠিক নেই? এনে এত ডিটেইলে গেছে না আর কি। বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ দিস ওয়ান উইল অলওয়েজ গিভ ইউ দিস লাইন, 90 डिग्री वाला लाइन देगा हमेशा। तो इवन इफ इट इज इन योर बुक बट इट इज नॉट एक्चुअल आंसर, ठीक है? जेई में विल फाइंड इट बिकॉज वी कैन नॉट पुट इट हियर। यहाँ डालने से वो इन्फिनिट बन जाएगा। इन्फिनिटी तो में तो सॉल्यूशन नहीं होता, रियल सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है? ट्राई करना लास्ट वाला तक, नहीं होगा तो नेक्स्ट डे विल डिस्कस।